کلام مقدس میں سے ہم اعمال کی کتاب میں سے آج رات چند باتیں اپنے رہنمائی اور رہبری کے لیے سیکھیں گے میرے عزیزو۔ اعمال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں رسولوں کے وہ کام، وہ اعمال، وہ باتیں، وہ جستجو، وہ کوششیں اور وہ تاریخ نظر آتی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے انہیں آسمان پر جانے سے پہلے دی تھی۔ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر صعود فرمانے کو تھے، خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جانے کو تھے تو انہوں نے اپنے رسولوں کو کوہ زیتون کے پہاڑ پر جمع کیا اور انہیں کچھ انسٹرکشن دی، انہیں کچھ باتیں بتائیں، انہیں کچھ راز کی باتیں بتائیں، کیونکہ شاگرد اس بات کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں کے سامنے صلیبی موت لیتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ بہت سہمے اور ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن جو خدا نے انہیں مشن، جو خدا نے انہیں تاریخ چلانے کے لیے دی تھی، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے ان سے باقاعدہ طور پر ایک میٹنگ کی ہے۔ کوہ زیتون کے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح نے ان 11 رسولوں کو بلایا ہے اور ان سے بات کی ہے، ان سے کلام کیا ہے، انہیں اس بات کے لیے تسلی دی ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ فائدے مند ہوگا، کیونکہ وہ اس بات کو لے کر بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ آقا، استاد، معجزات کرنے والا، شفا دینے والا، زندگیوں کو بحال کرنے والا، بدروحوں کو نکالنے والا، بندنوں اور جوؤں کو کھولنے والا اور نجات کی قدرت کو جاری اور ساری کرنے والا اب تو ہم سے جدا ہونے کو ہے، اب تو یہ آسمان پر جانے کو ہے۔ سو یہ تاریخ کس طرح جو نجات کی ہے، جو نجات کا کام خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سونپا ہے، یہ کس طرح آگے بڑھے گا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود تو آسمان پر جانے والے ہیں، لیکن مسیح یسوع نے بڑی ہی زبردست چیزیں اس ٹائم بتائیں اور اس ٹائم سمجھائیں۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں خدا یسوع مسیح نے انہیں کیا کہا؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ خدا کے پاک کلام میں پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی تعریف، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خوبصورت کلام کے لیے جو ورس میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں خداوند یسوع مسیح انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہیں کیا نہ ملے قوت کا لباس، جس طرح انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار روح القدس کی صورت میں بھجواتا ہوں، اور جب تم اسے پاؤ گے، جب تم اسے ریسیو کرو گے، جب تم اس کی باتوں کو، اس کے کاموں کو لے کر چلو گے، تو تم کیا کرو گے؟ پورے یروشلم میں، یہودی اور سامریہ میں کیا ہوگے؟ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ میرے عزیزو، وہی روح القدس خدا آج مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، وہی قوت، وہی مسا، وہی خدا کی حضوری، وہی خدا کی معموری ہمارے درمیان بھی ہے۔ آئیں ایمان کے ساتھ اس روح القدس کو، اس قوت کے لباس کو ریسیو کرنا شروع کریں جسے خدا نے اپنے رسولوں پر خدمت کو، خوشخبری کو پھیلانے سے پہلے انہیں روح القدس سے، قوت کے لباس سے بھرا، اور یہاں لکھا ہے کہ زمین کے انتہا تک کیا ہوگے؟ میرے گواہ ہوگے۔ زمین کے آخر تک، جہاں تک زمین ہے، تم کیا ہوگے؟ میرے گواہ ہوگے۔ اور خدا مجھے اور آپ کو بھی اپنی گواہی کے لیے اس دور میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جس طرح خدا نے اپنے رسولوں کو آج سے 2000 سال پہلے اپنی گواہی کے لیے، اپنی خوشخبری کے لیے، اپنی نجات کے لیے اور اس تحریک کو چلانے کے لیے انہیں چنا اور انہیں قوت کا لباس روح القدس کی صورت میں دیا، تاکہ وہ دنیا کی انتہا تک کیا ہوں؟ خداوند یسوع مسیح کے گواہ ٹھہرے۔ جو کام خدا نے یسوع کو دیا، نجات کا، بحالی کا، وہی کام خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں یتیم، بے مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا میرا جانا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ میں جب جاؤں گا تو وہ دوسرا مددگار روح القدس کی صورت میں
तुम पर क्या होगा, नाजिल होगा। वो तुम्हें जोर देगा, वो तुम्हें कुव्वत देगा, वो तुम पर मेरी बातों को, मेरे प्लान को, मेरे मुकाशवात को क्या करेगा, खोलेगा। तुमने क्या करना है, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। मेरे जीजो, हम जिस जगह मौजूद हैं, हमने क्या करना है, अपने घरानों में रहकर उस जगह पर ठहरे रहना है जहां खुदा ने हमें रखा है। जिस तरह खुदा ने रसूलों से, खुदा यीशु मसीह ने कलाम किया, ठहरे रहना। खुदा मुझसे और आपसे भी कलाम कर रहा है कि मुझे और आपको भी खुदा की हजूरी में ठहरने की जरूरत है। मुझे और आपको भी खुदा की हजूरी में झुकने की, अपने आप को खाली करने की, अपने आप को उंडेलने की जरूरत है, ताकि खुदा क्या करे, मुझे और आपको भी वो रूह कुद्दस दे जो हमें यीशु की गवाही के लिए क्या करे, उठाए। यीशु के कामों को करने के लिए क्या करे, उठाए। उस तारीख को, उस मिशन को, उस रोया को क्या करे, खुदा बढ़ाए। पतरस और उसकी टीम ऐसी जबरदस्त टीम थी जो रूह कुद्दस की कुव्वत से भरी हुई थी। उस दौर में एक बड़ी बेदारी को वो खुदा की कुदरत और खुदा की मामूरी को वो यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में और बहुत सारी जगहों पर लेकर गए। जबरदस्त रिवाइवलिस्ट थे वो, जबरदस्त खुदा के सूरमा थे वो। चंद लोग थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में उस वक्त के हुक्मरानों को, उस वक्त के यहूदियों को जो गैर ईमानदार थे, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, जो उसकी नजात को, जो उसके वजूद को नहीं मानते थे, चंद लोग थे, लेकिन उन्होंने उस दौर के लोगों को हिला कर रख दिया। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह कुद्दस, खुदा की कुदरत, खुदा उनके साथ खड़ा होकर उनके दरमियान रहकर क्या करता था, अपने जलाल और कुदरत और अपने मौजूद को जाहिर करता था। इमाल की किताब के आखिर में आमीन नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन कि अभी नजात की तहरीक और फैलने वाली है, अभी खुशखबरी और फैलने वाली है, अभी खुदा की कुदरत को और दूसरों तक लेकर, नजात को लेकर, इस तारीख को, इस रोया को लेकर जाने की जरूरत है। जो अमाल, जो काम रसूलों ने किए, वही काम हमने भी खुदावन यीशु मसीह के लिए करने हैं। उन्होंने अपने खुदावन की, उस खुदावन यीशु मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस छोड़ दिए, अपने घराने छोड़ दिए और मसीह की खिदमत को लेकर क्या किया, बढ़ने लगे। वो इस चीज को लेकर परेशान थे कि आका उस्ताद तो चला जाएगा तो हमारा पीछे क्या बनेगा, हम खुदावन यीशु के बगैर कुछ नहीं है, उनकी सोच थी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद होगा। जब मैं जाऊंगा तो तुम क्या होगे, रूह कुद्दस की सूरत में कुव्वत का लिबास पहनोगे, और जब कुव्वत का लिबास तुम पर आएगा, खुदा की कुदरत तुम में क्या करेगी, काम करेगी। इस किताब के अंदर खुदा ने बड़े बड़े अजीब और जलाली काम इमाल की किताब के अंदर की। मैं जब इस किताब को पढ़ता हूँ तो मुझे खुदा का पूरा कलाम जहां से भी आप पढ़े आपको बड़ी बरकत मिलती है, क्योंकि खुदा का कलाम कुदरत और कुव्वत से भरा। लेकिन जब इमाल की किताब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी ही ब्लेसिंग मिलती, मुझे बड़ा जोर मिलता है, मुझे बड़ी कुव्वत मिलती इनके कामों को देखकर, इनके अमाल को देखकर, इनकी जिंदगियों को देखकर। ये अपनी जिंदगियों को खुदा की हुजूरी में किस तरह इन्होंने रखा और किस तरह इन्होंने खुदा के कलाम को दिलेरी के साथ उस दौर में फैलाया। इसके लिए बहुत से रसूलों ने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। बहुत से रसूलों ने क्या किया, अपने आप को मसीह यीशु के लिए कुर्बान किया, उन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए। लेकिन इस तारीख को, इस काम को उन्होंने खत्म होने नहीं दिया, इस मिशन को उन्होंने खत्म होने नहीं दिया, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा, इमाल की किताब में ही खुदा रोज बरोज बहुत से लोगों को उनमें क्या करता रहता था, शामिल करता रहता था, बहुत सी जिंदगियों को, बहुत से लोगों को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदा और उसकी कुदरत बसती थी, उनके अंदर खुदा और उसका कलाम था, उनके अंदर खुदा और उसका पाक रूह
काम करता था। और जब पतरस ने पहला सरमन सुनाया है तो 3000 लोगों ने क्या किया है, मसीह यीशु को कबूल किया है। ये तारीख क्या हुई है, बढ़ना शुरू हुई है। दिन ब दिन खुदा उनमें लोगों को, जिंदगियों को, गैर ईमानदारों को, उन यहूदियों को जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चिढ़ते थे, जो उसके नाम को लेकर कलाम करने से, उसकी बातों को करने से मना करते थे, खुदा ने उनको भी अपने रसूलों में ला खड़ा किया, अपने लोगों में ला खड़ा किया, ताकि क्या हो, ये रोया और बढ़े, ये खिदमत और बढ़े, ये काम और बढ़े। और आज मेरे बहनों भाइयों, वही चीजें, वही कलाम, वही पाकरू, वही हुक्म, वही खुदा की कुदरत मेरे और आपके साथ भी है, और वो मुझे और आपको भी इसी तरह इस्तेमाल करना चाहता है जिस तरह उसने अपने रसूलों को किया। एक बड़ी बेदारी, एक बड़ा रिवाइवल का काम उस दौर में हुआ, और आज भी इस दौर में उसी बेदारी की जरूरत आज के लोगों को भी है। वो बेदारी, वो रिवाइवल, उसी खुदा की कुदरत की आज भी बहुत से लोगों को जरूरत है, जो खुदा की नजात से क्या हैं, खाली हैं। खुदा उनके जरिया से बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करता था। रूह कुद्दुस को लेने के बाद वो एक और बड़ा जबरदस्त काम करते थे। जब लोग उनमें शामिल होते थे, जब उनकी तारीख बढ़ी, जब उनकी मिनिस्ट्री बढ़ी, तो बहुत सी ऐसी चीजें उनके अंदर, जिस्मानी काम बहुत से जो वो ना कर पाते थे, जिसके लिए उन कामों के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को मुकर्रर किया, ताकि वो जो दुनिया के काम हैं, जो जरूरतें हैं, खाने पीने की अशिया हैं और कुछ चीजें हैं, वो क्या करें, उनके लिए करें। लेकिन रसूलों ने क्या किया, उस चीज को जो उनकी तरक्की का बाइस थी, जो उनकी बढ़ोतरी का बाइस थी, वो उन्होंने ना छोड़ी। और वो चीज क्या थी, लिखा है कलाम मुकद्दस में, ईमाल ही की किताब में, कि उन्होंने और लोगों को मुकर्रर किया ताकि वो दूसरे काम करें, लेकिन रसूलों ने कहा हम तो दुआ और खिदमत में क्या रहेंगे, मशगूल रहेंगे। हम तो दुआ खिदमत में क्या रहेंगे, मशगूल रहेंगे। आज कलीसियाओं को, आज की कलीसिया को भी, हमारी कलीसिया को भी उस कलीसिया की तरह दुआ करने की जरूरत है, रूहानी कलीसिया की तरह बेदार होने की जरूरत है। जिस तरह वो कलीसिया दुआ करती थी, अपने सारे कामों को छोड़ के पहले वो खुदा की हजूरी में झुकते थे, ताकि खुदा क्या करे, इस तारीख को, इस बेदारी को और जोरों शोर से बढ़ाए। और हमने इस बात को खुदा के कलाम में देखा है कि जहां से रसूल गुजरते थे, जहां से खुदा के लोग गुजरते थे, तो लोग अपने बीमारों को सड़कों पर लाकर बिठा देते थे, ताकि रसूलों का साया ही उन पर पड़ जाए, तो वो क्या पाएं, शिफा पाएं। फिर पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए तीसरे वक्त हैकल में, लिखा है, जा रहे थे, वहां एक जन्म के लंगड़े को देखा उन्होंने, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने उसे यीशु नाम की कुदरत से चंगा किया। ये सब रूह कुद्दस के काम थे, ये सब उनकी मेहनत के काम थे, ये सब उनकी लगन, जो खुदा के साथ उनकी कमिटमेंट थी। खुदा ऐसे मौजे नहीं करता था, खुदा ऐसे ही जिंदगी को नहीं बदलता था, खुदा ऐसे ही नजात के काम को नहीं करता था। उनके पीछे उनकी स्ट्रगल थी। वो रातों रात दुआ करते होंगे, वो रातों रात खुदा की हुजूरी में पड़े रहते होंगे। उन्होंने अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लिया, दुनिया से अलग किया, दुनिया की चीजों, ऐशो इशरत से, दुनिया की एंटरटेन करने वाली चीजों से, दुनिया के लोगों से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ताकि वो मिशन, वो काम जो खुदा यीशु मसीह ने करने के लिए दिया है, वो अच्छे तरीके से उसके लिए करने वाले हों। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी
खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अंजील के लिए अपनी कुर्बानियों को भी पेश किया। तकरीबन सारे ही रसूल शहीद किए गए, लेकिन उनमें एक रसूल यूहन्ना वो वाहिद रसूल था जो अपनी तबाही मौत मरा था। बाकी जितने भी थे उन्हें शहीद किया गया था। उन्होंने इस कलाम की खुशखबरी के लिए क्या किया, अपनी जानों तक के नजराने दे दिए ताकि तहरीक कलाम की बेदारी और रिवाइवल को क्या करे, वो बरकरार रखे, वो मेंटेन रखे, ताकि खुदा का काम क्या हो और बढ़ता जाए। इसी अमाल की किताब में एक शहीद का जिक्र हमें मिलता है, स्तिफनस के बारे में। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि स्तिफनस खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों में एक ऐसा रसूल था इमाल की किताब में, जिसे खुदावंद बड़ी कसरत के साथ उस दौर में अपने रूह कुदस की कुदरत से भरकर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब निशान क्या करता था, जाहिर करता था। स्तिफनस में कोई खूबी नहीं थी, रसूलों में, पतरस में, याकूब में, यूहन्ना में, इंद्रियास में, फिलिप्पस में कोई खूबी नहीं थी। खूबी थी तो खुदा की मोहब्बत और खुदा के पाक रूह। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी, उनके अंदर जो कुव्वत थी, वो उनकी अपनी नहीं थी। वो कुव्वत जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दिया, उसने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। उनमें कोई भी कुव्वत नहीं थी और मुझ में और आप में भी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के कलाम से, उसके रूह कुदस से भर जाते हैं तो खुदा हमें क्या करता है, वही सारी चीजें देता है जिस तरह उसने अपने रसूलों को दी। स्तिफनस के बारे में लिखा है कि खुदा उसे बड़े कसरत के साथ इस्तेमाल करता था। लेकिन ये बात यहूदियों को, उस वक्त के लोगों को पसंद नहीं, और आज के दौर में भी कुछ इस तरह ही है। जब आप कलाम की खुशखबरी को लोगों तक लेकर जाएंगे, यीशु नाम को लोगों तक लेकर जाएंगे, तो लोग आपसे क्या करेंगे, चिढ़ना शुरू हो जाएंगे। लोग आपसे हसरत करेंगे, लोग आपसे नफरत रखेंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा जो है वो कड़वी होती है। सच्चाई जो है उसे कबूल करना गैर ईमानदारों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो खुदा और उसकी निजात से खाली हैं। और मुझे और आपको सच्चाई को उन लोगों तक लेके जाना है। लिखा है स्तिफनस जब खुदा के रूह कुदस से भर के कलाम सुनाता था तो बहुत से लोग उससे क्या करते थे, हसरत करते थे, नफरत करते थे, उसे मारने की कोशिश में लगे हुए थे, और वो अपने मंसूबे में क्या हुए, कामयाब हो गए। स्तिफनस को जब उन्होंने खुदा की खुशखबरी सुनाते हुए पकड़ा है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने उसे कलाम की खातिर, यीशु मसीह की खातिर, उसके नाम की खातिर उससे अदावत रखी है। और आज के दौर में भी मैं और आप देख रहे हैं बहुत से मुल्कों में यही काम हो रहा है, बहुत सी जगहों पर यही काम हो रहा है कि खुदा यीशु मसीह के नाम से लोग क्या कर रहे हैं, खुदा के लोगों से नफरत कर रहे हैं, उन पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, उन्हें टफ टाइम दे रहे हैं, उन्हें मुसीबतों परेशानियों में वो क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। और ये बातें मेरे जीतों कलाम मुकद्दस में खुदा ने हमें वाज़िया तौर पर पहले से ही बता दी है कि मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें क्या करेंगे, अदालत में घसीटेंगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुम्हें मारने मराने पर क्या आएंगे, इस तरह तुमसे क्या करेंगे, वो बर्ताव करेंगे। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदा की खातिर, जो खुदा के कलाम की खातिर और जो मसीह की खातिर अपनी जानों के नजराने देते हैं। और यहाँ पर लिखा है बस वो स्तिफनस को संसार करते रहे, क्यों? क्योंकि वो खुशखबरी सुनाने से बाज ना आया, वो सच्चाई बताने से बाज ना आया, वो खुदा के कलाम को, खुशखबरी को सुनाने से क्या है, बाज ना आया। संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जुमे ना लगा, और ये कहकर सो गया।
प्रेज गॉड। देखें मेरे अजीजों, खुदा के उन बहादुर जबरदस्त रसूलों को जिन्होंने खुशखबरी की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, उसको पत्थरों से मार मार क्या किया, संसार कर दिया सिर्फ यीशु नाम की खातिर, खुशखबरी की खातिर। और वो क्या कह रहा है कि ए खुदावंद, इनके गुनाह इनके जुमे ना लगा, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि खुदा इस बेदारी को हमारी जरिए से बढ़ाने को है। अगर हम खुदावन का इनकार करेंगे, अगर हम अपनी जानों को बचाएंगे, अगर हम उसके नाम का इनकार करेंगे, तो ये बेदारी, ये तारीख हरगिज ना बढ़ेगी। और आज के दौर में भी यही चीजें हो रही हैं। लोग मसीहियों को पकड़ पकड़ कर मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोग मसीहियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। रिसेंटली हमने देखा है गॉस्पल सिंगर और प्रस्तार सिस्टर तबीता, आप सब ने देखा होगा कि मसीह की गवाही की खातिर उसे उन लोगों ने क्या है, पकड़ा हुआ है। जहां तक मुझे इन बातों का इल्म है कि उसके खिलाफ उन्होंने यानी कि ऐसी चीजों को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है मुकदमात की सूरत में और ऐसी सूरत में, जहां तक मुझे कुछ इल्म है इसके बारे में। लेकिन मेरे अजीजों, उस बहन का ईमान देखें, मैंने उसकी कुछ वीडियो देखी हैं, उसने बड़े फख्र से इस बात को उनके सामने इस चीज को बयान किया है कि मैं मसीही हूँ। उसने मसीह का इनकार नहीं किया है। उसने गवाही को, खुदा के कलाम को, खुदा की कुदरत को, खुदा के मौजूद को उनके दरमियान बयान किया होगा, क्योंकि गवाही मेरे और आपके अंदर है कलाम की सूरत में। ये सब हमारे साथ भी होने को है जब हम मसीह के कलाम को, उसकी खुशखबरी को दूसरों तक लेकर जाएंगे। हमने मसीह का इनकार नहीं करना, उस बहन ने मसीह का इनकार नहीं किया। और हमारी दुआ है कि खुदा अपनी बेटी को क्या करे, इस मुश्किल और इस परेशानी से आजाद करे। क्योंकि जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, जब हम खुशखबरी के लिए, यीशु नाम के लिए कुछ करते हैं, तो खुदा क्या करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें इस्तेमाल करने के लिए। पूरी बाइबल में आप देखेंगे कि खुदा के लोगों ने किस तरह खुदा के कलाम के लिए, खुदा के नाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास जिंदा उम्मीद है, वो हमारा यीशु मसीह है जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।